بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں عاصمہ شرازی، پروگرام ہے فیصلہ آپ کا۔ پروگرام کا آغاز دلی میں ہونے والی اس اہم کانفرنس کے ساتھ جو کہ آل پارٹیز کانفرنس ہوئی ہے آج، جس میں تمام کشمیری رہنماؤں کو دعوت دی گئی تھی، لیکن حریت کانفرنس نے اس کانفرنس کا مودی سرکار کے انڈر یا وزیر اعظم مودی کے انڈر جو ہونی تھی اس سے بائیکاٹ کیا۔ تقریباً 14 کے قریب رہنما جو تھے وہ اس میں شریک ہوئے، جو کہ جن کو کہا جاتا ہے کہ وہ بھارت نواز کشمیری قیادت ہے، اور وہ وہاں پہ پہنچی، لیکن اس قیادت کی طرف سے بھی آج بہت اہم بیانات سامنے آئے۔ اس میں محبوبہ مفتی صاحبہ گئی، فاروق عبداللہ صاحب، غلام نبی آزاد اور عمر عبداللہ جو تھے وہ مین اس میں رہنما تھے، جو کہ آج کی اس کانفرنس کے اندر گئے تھے۔ اس میں بہت ساری باتیں ہوئی اور سارا دن بھارتی میڈیا یہ ڈھول پیٹتا رہا کہ بھارت سرکار کو اس کے اندر کامیابی ہوئی ہے ان تمام لوگوں کو بلانے کے لیے جو کہ ان کے خلاف بول رہے تھے۔ لیکن اب سے تھوڑی دیر پہلے جو ہم نے بھارتی میڈیا کو دیکھا تو تقریباً ماتم کا سا سما تھا، کیونکہ تمام رہنما جو کہ اس کانفرنس کے اندر گئے انہوں نے یہ بات کہی کہ جو کشمیر کا سٹیٹس تھا اس کی تبدیلی، اس کے مخصوص سٹیٹس کو تبدیل کرنے کی جو کوشش ہے بھارت کی وہ ناکام ہونی چاہیے، اور وہ ناکام ہے، اور کسی طور تسلیم نہیں کیا جائے گا کہ کشمیر کی خصوصی حیثیت کو جو ہے وہ تبدیل کیا جائے۔ یہ ایک بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے اگر کشمیر کے معاملے کو دیکھا جائے، اور ایک بہت بڑی کامیابی ہے کشمیری رہنماؤں کی اور کشمیری عوام کی کہ وہ بھارتی سرکار کے سامنے یہ بات کہہ سکے ہیں۔ انہوں نے یہ بات کہی ہے ببانگ دہل کہ اس معاملے کے اوپر کوئی بھی، بھلے وہ بھارتی نواز ہوں، بھارت سرکار کے حق میں ہوں، لیکن کوئی بھی کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے۔ کیا کہا ابھی تھوڑی دیر پہلے تمام رہنماؤں نے میڈیا کے اوپر، وہ ذرا آپ کو سنوائے دیتے ہیں کہ کس طرح سے بھارت کے سرکار کے سامنے جو ہے انہوں نے مقدمہ لڑا ہے، ذرا سنیے گا۔ انکانسٹیٹیوشنل اور انلیگل اور امورل طریقے سے 370 کو ہٹا گیا۔ یہ جموں کشمیر کے لوگوں کو قبول نہیں ہے۔ جموں کشمیر کے لوگ کانسٹیٹیوشنلی، ڈیموکریٹکلی، پیسفلی اسٹرگل کریں گے، کیونکہ یہ ہماری آئیڈینٹی کی بات ہے۔ وزیر اعظم صاحب کو سب کو کہا کہ جہاں تک 5 اگست 2019 کا فیصلہ ہے یا جو کیا گیا، ہم اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم اس کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس فیصلے کے خلاف جو ہے اپنی لڑائی لڑیں گے۔ کہ ڈیزالو ہوئی ہے وہ نہیں ہونی چاہیے تھی، الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز تھے ان سے پوچھے بغیر کیا گیا۔ ایک بڑی مانگ تھی کہ اسٹیٹ ہوڈ جلدی دینا چاہیے۔ آپ نے سنا غلام نبی آزاد، عمر عبداللہ، محبوبہ مفتی اور دیگر رہنما جو تھے، 3 کے تو ہم نے آپ کو سنوائے، جنہوں نے صاف کہا کہ 5 اگست کا جو فیصلہ تھا ہندوستان کا وہ قطعی نامنظور ہے، اور اس معاملے کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ اب ظاہر ہے یہ اس کے اوپر دیکھنا ہے کہ کس طرح سے آگے یہ ڈیولپمنٹ بڑھتی ہے، کیسے اس پہ یہ سٹوری ڈیولپ ہوتی ہے۔ دوسری جو اہم سٹوری ہے وہ ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس پہ جو سزاؤں کا معاملہ ہے، آج اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھا، اور اس پہ میاں نواز شریف کی جو اپیل تھی اس کو خارج کیا گیا ہے اس بنیاد کے اوپر کہ وہ یہاں پہ موجود نہیں تھے۔ جو مریم نواز صاحبہ کی اور کیپٹن صفدر کی اپیلیں تھیں ان کو سنوائی کے لیے مقرر کر لیا گیا، اور 6 جولائی کو ان کی اپیلیں جو ہیں وہ سنی جائیں گی، جبکہ میاں نواز شریف کی جو اپیل تھی ان کے اوپر اہم فیصلہ آج یہ دیا ہے کورٹ نے، اور میں کوٹ ان کوٹ یعنی جو عدالت نے فیصلہ دیا وہ آپ کو بتا دیتی ہوں۔ کہا گیا کہ نواز شریف باہر چلے گئے اور ضمانت ملنے کے باوجود بغیر کسی وجہ اور بنیاد کے عدالت میں حاضر نہیں ہوئے۔ یہ بھی کہا عدالت نے اس عدالت کے پاس کوئی چارہ نہیں کہ وہ انہیں قانون کے مطابق مفرور قرار دے، مفرور ہونے کی وجہ سے نواز شریف اپیل کا حق کھو بیٹھے ہیں۔ عدالت کے پاس نواز شریف کی اپیلیں مسترد کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں، اور درخواست گزار نواز شریف جب خود کو سرنڈر کریں گے یا حکام انہیں تحویل میں لیں تو اپیل بحالی کی درخواست وہ کر سکتے ہیں۔ یعنی کہ ایک طرح سے ابھی جو حکومتی ایوانوں سے ہمیں بات سننے کو مل رہی ہے وہ خوش ہے اس بات کے اوپر کہ عدالت نے سرنڈر کرنے کے لیے کہا ہے، اور اس کے اوپر کافی مثبت سٹیٹمنٹس ہم نے سنے ہیں۔ لیکن دوسری جانب اگر ہم اس کیس کو دیکھیں تو وہ تمام دلائل جو کہ اعظم نذیر تارڑ صاحب گزشتہ کئی دنوں سے اور کل بھی انہوں نے دیے کہ سابق وزیر اعظم کی غیر موجودگی میں اس اپیل کو خارج کر دیا جائے اور فیئر ٹرائل کا موقع دیا جائے، وہ اس کے اندر کامیاب ہوا ہے۔ اب کس کی کامیابی ہے کس کی ناکامی
نہیں, اس کے اوپر ہم ضرور بات کریں گے پروگرام کے اندر. لیکن جو ایک اور اہم ڈیولپمنٹ ہے وہ یہ بھی ہے کہ جو زرداری صاحب ہے, آصف زرداری صاحب, وہ پنجاب کے دورے پہ ہیں, وہاں پہ انہوں نے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں, مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں اور اطلاعات آ رہی ہیں پی ٹی آئی کا فلانا ٹکٹ ہولڈر ان کے ساتھ ملا اور انہوں نے وہ شامل ہونے کے لیے تیار ہے. پرویز الہی صاحب کی بھی ان سے ملاقات ہوئی ہے, انہوں نے تقریباً کوئی آج آموں کی پیٹیوں کا تحفہ شہباز شریف صاحب کو بھی بھیجا ہے, اور کہا یہ جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کے ساتھ ملاقات آصف زرداری صاحب کی جو ہے اس کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں, اسی لیے انہوں نے اپنا قیام بڑھا دیا ہے. اس وجہ سے بڑھایا ہے, کسی اور وجہ سے, لیکن کیا پاکستان پیپلز پارٹی پنجاب کے اندر اپنی جو پریزنس ہے, اپنی جو ریوائول ہے, اس کو یقینی بنا پائے گی کہ نہیں, وہ کر پائے گی کہ نہیں, کیونکہ پنجاب میں پیپلز پارٹی نہ ہونے کے برابر ہے. ان تمام موضوعات پہ بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہے جناب قمر زمان قاہرہ صاحب, کسی تعارف کے محتاج نہیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر ترین رہنماؤں میں سے ہیں. بہت بہت شکریہ آپ کی تشریف آوری کا. جناب خرم دستگیر خان صاحب, رکن قومی اسمبلی ہیں, سابق وزیر دفاع, سابق وزیر خارجہ, آپ کا بہت بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود ہوں گے علی محمد خان صاحب, جو کہ اس وقت وزیر مملکت برائے پارلیمانی امور ہیں, وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے اسلام آباد سے. آپ کا بھی بہت بہت شکریہ علی محمد خان صاحب ہمیں جوائن کرنے کا. سب سے پہلے خرم دستگیر خان صاحب آپ کے پاس آتے ہیں. ایک تو یہ جو ایون فیلڈ اور العزیزیہ ریفرنس والا ہے, یہ کیا ون ون سچویشن ہے؟ مطلب آپ کی بات بھی سنی گئی, آپ کہتے تھے فیئر ٹرائل دیا جائے, دوسری طرف حکومت کہہ رہی ہے, کہہ رہے ہیں اپنے شیخ رشید صاحب کہ 15 دنوں کے اندر اندر ایکسٹریڈیشن ٹریٹی جو ہے وہ کر لیں گے برطانوی حکومت کے ساتھ. آئیں گے میاں صاحب واپس؟ جی, قانون اپنا رستہ لے گا, لیکن میاں صاحب قانون کی اجازت سے ہی ملک سے باہر گئے تھے, کوئی فرار نہیں ہوئے تھے. دن کی روشنی میں باقاعدہ ہائی کورٹ کے سینکشن کے ساتھ گئے تھے, اور اس سینکشن میں یہ لکھا ہوا ہے, لاہور ہائی کورٹ کے سینکشن, جس نے اوریجنل ڈیسیژن یہ دیا ہوا ہے کہ جب تک ان کے ڈاکٹرز ان کو اجازت نہیں دیتے وہ اس وقت تک واپس نہیں آئیں گے. لیکن یہ سارے قانونی معاملات ہیں. اعظم ندیر تارڑ صاحب اس کے معاون تھے, وہ ہمارے وکیل نہیں تھے. تو جو اصل اہم بات یہ ہے کہ کورٹ نے جو نواز شریف کے جو قانونی حقوق تھے, جو لیگل رائٹس ہیں اپیل کے, وہ برقرار رکھے ہیں, اور یہ کہا ہے کہ جی جب بھی وہ اویلیبل ہوں گے کورٹ کو, وہ دوبارہ جو ہے اس کو ریسریکٹ کر سکتے ہیں اپنی اپیل کو. تو ہمیں تو یہی, اگرچہ بہت سارے عدالتی فیصلوں سے ہمیں اختلاف بھی ہے, ہمارے تحفظات بھی ہیں, لیکن ہمیں یہ امید ہے کہ عدالتیں قانون کے مطابق ہی فیصلہ کریں. یعنی تھوڑا سا ریلیف آپ کو محسوس ہوتا ہے کہ میاں نواز شریف کی ایبسنس میں کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا, کم از کم ان کے آنے کا انتظار کیا جائے گا. جی, ان کے آنے کا انتظار کیا جائے گا, اور پھر جن حالات میں ابھی تو چونکہ میرٹس ڈسکس نہیں ہوئے نا, جی میرٹس پہ بات, وہ سب لوگ جو آج شادیانے بجا رہے ہیں, کیونکہ جب میرٹس ڈسکس ہوں گے تو مرحوم ارشد ملک صاحب جو جج تھے جنہوں نے نواز شریف کو کنوکٹ کیا تھا, ان کا سارا معاملہ بھی ابھی عدالت کے سامنے آنا باقی ہے. وہ تمام ویڈیوز, ان کے اوپر کس قسم کے جو تناؤ تھا, پریشر تھا, وہ سب بھی سارے ایشوز باہر آئیں گے, اس کے اوپر ڈسکس ہوگا. تو میرٹس جو ہیں وہ ابھی ڈسکس نہیں ہوئے. جب میاں نواز شریف تشریف لائیں گے, اور انشاءاللہ آئیں گے, انہوں نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ میں نہیں آؤں گا, تو وہ جب آئیں گے تو میرٹس بھی ڈسکس ہوں گے, ارشد ملک بھی ڈسکس ہوں گے, جن حالات میں وہ فیصلے کیے گئے. فیکٹ یہ تھا کہ دیکھیں, عدالت اپنے فیصلوں میں مجاز ہے, لیکن یہ حقیقت ہے کہ نواز شریف نے ان دونوں ریفرنسز میں کوئی تقریباً 200 سے زائد پیشیاں اسلام آباد میں نیب کے سامنے وہ ہر روز پیش ہوتے تھے جب بھی بلایا جاتا تھا, تو عدالتوں کے سامنے انہوں نے سبمٹ کیا ہے. اب ہمیں امید یہی ہے کہ جب بھی یہ اپیل ہوگی تو پھر میرٹس کے اوپر قانون کے مطابق فیصلہ. آپ کو قاہرہ صاحب یہ فیصلہ یا آج کا جو فیصلہ ہے, آپ کے کیا کمنٹس ہیں اس کے اوپر؟ مطلب ون ون سچویشن ہے. پھر آج شیخ رشید صاحب نے ایک اور جملہ بھی کہا, انہوں نے کہا وہ چکما دے کے یہاں سے چلے گئے تھے, لیکن اب ہم ان کو واپس لانے کا بندوبست کریں گے. یہ تو بڑا نامناسب جملہ ہے. وہ گورنمنٹ کی مرضی سے اور عدالت کے حکم سے گئے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں ہے. اور تسلیم بھی کیا ہے کہ حکومت کو کے اپنے ترجمان جو تھے, جو ان کے وزیر تھے, جو ان کا محکمہ ہے پورا, ان سب نے دیکھا کہ ان کی رپورٹس کیا ہیں. جو لیبارٹریز ہیں وہ تو حکومت کے پاس ہیں, ان کے پاس تو نہیں تھی میاں صاحب کے پاس. اور اگر وہ چکما دے گئے شیخ رشید صاحب کے بقول, تو پھر ان کا حق بنتا ہے پھر یہ اور کام کریں.
गवर्नमेंट किस बात की है कि फेडरल गवर्नमेंट भी है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी है, वो महकमे भी इनके पास हो, और वजीर आजम साहब अपना डॉक्टर भी भेजे खुद, उन डिपार्टमेंट में इंतजार न करें, तो वो डॉक्टर भी जाके विजिट कर आए और फिर भी वो चकमा दे जाए, तो फिर तो हुकूमत को कुछ और करने की मतलब जरूरत आपके ख्याल में मियाँ साहब काफी मतलब है। मैं ये कह रहा हूँ कि मियां साहब जनरली के मैं चकमे की बात नहीं, मैं तो उनके उस जुमले की बात जी, कर रहा हूं, उन्होंने ये लफ्ज नामुनासिब इस्तेमाल जुमला। किए जब भी मैं कोट कर रही हूं। गुजारिश है नामुनासिब कि वर्ड है, लेकिन जहां चलें। तक ताल्लुक फैसले का है, मियां साहब को और मुस्लिम लीग को इंसाफ मिल जाता है, मिलना चाहिए, अच्छी बात है, अल्लाह करे हमें भी मिला करे। लेकिन सवाल ये है कि कहे साहब ये तो आपने बड़ी गहरी बात कर दी है कि इंसाफ मिल जाता है इनको, वो कह रहे हैं हमें इंसाफ नहीं मिलता। हिस्टोरिकली ऐसे मिलता रहता है, हाँ। मतलब चले हमें भी मिला करे, अल्लाह करे। हाँ। लेकिन सवाल ये है कि मियां साहब की अपील है और यकीनन अपील का उनको ये हक हासिल है, और अपील में कोई मेरिट डिस्कस नहीं होना, अपील में तो और ग्राउंड्स होती है, अपील जो मेरिट है वो नीचे डिस्कस हो चुके हैं। अब तो उस मेरिट के ऊपर जो उसकी लीगैलिटी है, अपील तो लीगैलिटी पे होती है बेसिकली। इस केस में कुछ क्योंकि नए हकायक भी है या वो हकायक हैं जो इस केस का हिस्सा नहीं है लेकिन बड़े अहम है, जिस तरह वो मरहूम जज अरशद मलिक का बयान है, जी। तो वो अब नेचुरली अदालत उसको कंसिडर करेगी और उसके मुताबिक उसको देख के इसका फैसला तो करेगी। जैसे अभी मरियम बीबी की लग गई है दोनों, उनकी भी और कैप्टन साहब की भी, तो इसका मतलब है इसके पॉलिटिकल असर, अगर ये उनकी ज़ाहिर है वो तो मुल्क में मौजूद है, उनके हक में फैसला हो जाता है तो उसके तो सियासी असरात होंगे। नेचुरली नहीं इसके भी होंगे। हाँ। मियां साहब को इससे पहले भी जब वो जद्दा गए थे और उस वक्त भी उनको ये टाइम मिला था, वैसे ये भी एक रिलीफ है क्योंकि अदालत जो है वो जो अपील होती है ना, अपील में जो अपील करने वाला है उसका होना जरूरी नहीं होता, ट्रायल में जरूरी होता है, ट्रायल उसकी प्रेजेंस के बगैर नहीं हो सकता, लेकिन अपील में उसका होना जरूरी नहीं है। तो ये मुस्लिम लीग के वकील या जो भी असिस्टेंट से आजम नजीर तारड़ साहब, उन्होंने अच्छा मुकदमा लड़के ये रिलीफ जरूर ले लिया, वरना अदालत इस बुनियाद पे उनका मुकदमा खारिज भी कर सकती थी। अच्छा, ये तो पॉसिबल है, ये एक लेकिन नुक्ता है। ये है क्योंकि जो प्रेजेंस है अपीलेंट की वो ट्रायल में जरूरी है, अपील में जरूरी अच्छा, नहीं है। अली मोहम्मद खान साहब आप क्या कहेंगे, क्योंकि आज हमने सुना जितने भी हुकूमत के वुज़रा इस पे बात करते दिखाई दिए, उन्होंने कहा कि अब वो सरेंडर करेंगे, वापस आएंगे, फिर उनका एक्सट्रेडिशन ट्रीटी भी हम करेंगे और वहां से लाएंगे भी बरतानिया से साबिक वजीर आजम को। कामयाबी हो सकती है क्योंकि 15 दिन का टाइम शेख रशीद साहब ने दिया है एक्सट्रेडिशन के लिए। इस तरह के बहुत सारे टाइम ऐसे हुकूमत देती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम मुबारक अला सय्यिदिना मोहम्मद। बहुत शुक्रिया। मैं समझता हूं कि आज बहुत से लोगों को जवाब मिल गया, बहुत से उन सहाफियों को भी जवाब मिल गया जो बगैर पैसों के मियां नवाज शरीफ साहब के वकील बने हुए थे और अदालतों में उनके लिए केस करना चाह रहे थे कि उनको ऑडियंस, राइट ऑफ ऑडियंस दिया जाए पाकिस्तान के जो नेशनल नेटवर्क्स हैं। अच्छा, द जजमेंट ऑफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट इज वेरी मच क्लियर। और जो हमें लॉ में पढ़ाया जाता था, आज अदालत ने वही किया है जो आईन पाकिस्तान और लॉ कहता है। If you want to get आप relief तो ये from भी a court कहते of थे law, अली you मोहम्मद must खान select साहब before के that court. सहाफियों के कहने पे हुकूमत ने बाहर भेज दिया। आप तो ये भी कहते थे कि सहाफियों ने मुकदमा लड़ा के नवाज शरीफ साहब को बाहर भेजा चलो मैं जाए। अपनी बात कर लूं ना, मैंने तो उन साफियों की बात की है हाँ। जो बगैर पैसों के वकील बने हुए थे मियां नवाज शरीफ के, कि उनको राइट ऑफ ऑडियंस दिया जाए। उनके वकील हैं, तारड़ साहब अच्छे वकील हैं, उनके और भी बड़े अच्छे वकील, वो पैसों से कर सकते थे। तो बगैर पैसे की वकालत, और वो भी जो वकील ना हो उनको करने की जरूरत मेरे ख्याल में नहीं थी, उससे उनकी न्यूट्रलिटी बड़ी कॉम्प्रोमाइज हुई। लेकिन आज जो ये एक अलग मौजूद है, इसके ऊपर जरूर बात करेंगे किसी वक्त अली मोहम्मद खान साहब। लेकिन आप लोगों का अलमिया ये है कि सवाल कुछ किया जाता है, जवाब कुछ देते हैं। ये जवाब दीजिए कि आज कामयाबी किसकी हुई, आज कामयाबी किसकी हुई? साथियों को बड़ा दुख हुआ होगा जो बगैर पैसों के मियां साहब के वकील बने हुए थे। मुझे जरा इस्लामाबाद उन सहाफियों के नाम बता दे। चले आज पहले इस पे बहस कर लेते हैं, आज इस पे बहस कर लेते हैं अली मोहम्मद खान साहब कि किन सहाफियों ने जो गए थे, ये नहीं कि ये बहुत से साफी फिर नहीं आप नाम लेना, अभी आपको नाम लेने पड़ेंगे ना, ऐसे तो नहीं आप इल्जाम लगा सकते, आप नाम लेंगे पहले। आप 3-4 महीने पीछे के अखबारात उठा के देख लें, इसमें गुस्सा करने की तो कोई बात हम नहीं। तो गुस्सा ही नहीं कर रहे, हम तो आपसे पूछे क्योंकि आपने नवाज शरीफ की रवानगी का मसला भी सहाफियों के ऊपर डाल दिया कि सहाफी कहते थे कि उनको जाने दिया जाए, फैसला आपने किया, मामला आपने सहाफियों पे डाल दिया। हुकूमत थे, हम हुकूमत थे, हमें चकमा दे के निकल गए। लेकिन जरा थोड़ा मुझे इस पे बात करने दें। उनके चकमा कैसे दिया आपने, ये बताइए, चकमा कैसे दिया?
ये बता दे चकमा कैसे दिया, मैं पूछता हूँ। उनके रिप्रेजेंटेटिव्स मौजूद हैं मियां साहब के, वो मुझे काउंटर कर लेंगे। मुझे थोड़ा सा मुझे सख्त जो आज तरीन फैसला एतराज है है इस पे बात करने, क्योंकि कल मरियम बीबी ने भी बात की है और मैं समझता हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो आज उनकी जजमेंट आई है जस्टिस फारूक साहब की और कैनी साहब की, उसमें एक तो इस बात का मुकम्मल इज़हार किया गया कि आपको रिलीफ तभी मिल सकता है जब आप उस अदालत में सबमिट करें। लेकिन कुछ अल्फाज जो हैं वो मैं समझता हूं कि एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर साहब के लिए बड़े डैमनिंग है, उनकी पार्टी को उस पर सोचना चाहिए कि ये थोड़ा सा मैं पढ़ देता हूं। और आई थिंक इसमें मरियम बीबी के लिए भी सबक है, लेकिन खासकर पाकिस्तानियों के और मुस्लिम लीग नवाज के हमारे मोहतरम जो दोस्त हैं, जो वर्कर, उनकी आंखें खोलने के लिए काफी है कि आज एक पाकिस्तान की मोअज़्ज़ज़ तरीन अदालत क्या ऑब्जर्वेशन दे रही है। वो ये कह रही है कि नवाज मियां साहब का जिक्र है, प्रोसीडेड अब्रॉड एंड डिड नॉट अपीयर बिफोर दिस कोर्ट डिस्पाइट being on bail and without any justification or basis remained absent on a number of dates of hearing. Hence this court was left with no option but to follow the procedure and declared him as a fugitive from law. जी, इसका उर्दू तर्जुमा हमने अपने इंट्रो में बताया भी है और चलाया भी है। जी, मफरूज करार दिया है, अली मोहम्मद खान साहब मफरूज करार दिया है। और आज अदालत के इस फैसले के बाद ये बात साबित होगी कि बीमारी कोई नहीं थी। देखिए, मुझे इस पे बात करने दें कि अदालत की कह रही है, पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ अदालत कह रही है कि बगैर किसी वजह के एब्सेंट रहे, अगर उनकी रिपोर्ट्स मेडिकल की क्रेडिबल होती तो आज हमारी मुअज़्ज़ज़ अदालत इस्लामाबाद हाई कोर्ट को ये कहने की जरूरत न पड़ती। जी हाँ, इसका मतलब ये है कि उन्होंने सिर्फ चकमा हुकूमत को या कौम को नहीं दिया, चकमा उन्होंने अदालतों को भी दिया। इसलिए मरियम बीबी को कहना पड़ा कि उनकी जिंदगी और उनके इंसाफ मतलब वो इंसाफ जो जाति उम्रा को सूट करे, वो अगर आप जमानत दें तो कल आ जाएंगे। इसका मतलब बीमारी कोई नहीं थी। अच्छा। सिर्फ ट्रक की बत्ती के पीछे पूरी कौम को, खासकर अपने मुस्लिम लीग नवाज के वर्कर्स को लगाए रखा और वो रिवायत बरकरार रखी कि मुश्किल वक्त आता है तो हमारा शेर मुल्क से चला जाता है। अच्छा, ये मैं समझता हूँ बिल्कुल। मैं अच्छा, समझता खान हूँ साहब, कि दिस इज रियली डैमनिंग। ठीक बात है। साबिक वजीर आजम को ऐसा नहीं करना होना चाहिए। कौम से, आईन से, अदालत से मजाक नहीं करना चाहिए। अगर आप लीडर हैं तो आए। अगर मौजूदा वजीर आजम कश्मीर ये के मसले के हल को अपने एटमी प्रोग्राम को खत्म करने से जोड़ सकता है, उससे ज्यादा शर्मनाक तो कोई बात नहीं है ना। तो जो वो मौजूदा वजीर आजम है वो भी तो जवाब देना। आज भी सवाल ये है कि कल आप दोबारा इस पे कोर्ट ने आखिरी पैराग्राफ पढ़ लें। आखिरी पैराग्राफ कोर्ट का ये कहता है कि जो नवाज शरीफ का हक है इसी अदालत के सामने ही ने फाइल, उन्होंने कहा दिस कोर्ट। इसका मतलब ये है कि ये जो डिसमिसल है ये मेरिट्स पर नहीं हुआ। जब अगर तो वाकई डिसमिसल हुआ था तो फिर सुप्रीम कोर्ट में थी ना। उन्होंने ये कहा कि वो बाहर चले गए जमानत के बावजूद किसी वजह और बुनियाद के वो हाजिर नहीं हुए। ये तो आज कोर्ट हम ने उसको कहा, कंटेस्ट करेंगे कहा और करते रहेंगे जब तक ये नहीं होता। अदालतों के मिनिस्टर मैंने कहा हमें सख्त एतराज है, हमें एक हमारे पास एक लाएअमल मौजूद है, उनके कानूनी हकूक जो है वो इस वक्त इसका मतलब है कि वो बीमारी का बयानिया दौरान से नहीं। आपका जो चकमे का लफ्ज है मैं सख्त तरीन इसके ऊपर एतराज करता हूं, क्योंकि इसका मतलब अगर आपने आज तक, अब देखिए सुनिए अगर 1.5 साल हो गया है आपने अभी तक अपने पंजाब में वजीर सेहत को डिसमिस नहीं किया, आपने पंजाब की उनको डिसमिस नहीं किया, आपने अपने शौकत खान अस्पताल के हेड को डिसमिस करने के आपने उसको मुशीर सेहत बना दिया। इसका मतलब ये है कि ये कोई चकमा नहीं है। अज़राए करम अल्लाह ताला से माफी मांगे और मैं यही कह सकता हूं मेरे भाई जो है वो बीमारी ना हो जो नवाज शरीफ को बदवाना किया। प्रोग्राम का फिर मजा नहीं रहेगा आपका सारा कच्चा छिट्टा आपके बयान का वोट को इज्जत दो का दड़ाम से गिर गया। जब एक अदालत कहती है कि बगैर किसी वजह के मफरूज थे, इसका मतलब है आपने कोई मेडिकल रिपोर्ट ही कायरा साहब अब ये बात दोनों दोस्तों से एक गुजारिश है कि एक तो अगर बारी बारी बोलेंगे तो ज्यादा बेहतर अपना अपना मौकफ दे सकें कि कौम के सामने। हमको जज बन के तो नहीं बैठे हुए ना कि हम हमारी जजमेंट पे सारा फैसला हो जाना है, ना ही आज को पॉलिटिकल नैरेटिव बन जाना है, तो तहम्मुल से कर लेते हैं। गुजारिश ये है अली मोहम्मद खान साहब कि आज एक अदालत ने फैसला दिया है, इस तरह की अदालतों के फैसले आते रहते हैं, वो अदालतों में रिव्यू भी हो जाते हैं और सुप्रीम कोर्ट में भी चले जाते हैं। और सुप्रीम कोर्ट में जाके अगर यही फैसला स्ट्राइक डाउन हो गया तो आपका सारे का सारा ये जो जितना आपका सारा नैरेटिव आप खड़ा कर रहे हैं ये सारा धड़ाम से गिर जाएगा। और ये मोस्ट लाइकली है कि गिर जाए, इसलिए कि उनको जाने का इजाजत
और उनके लिए जो उस वक्त था कि आप अपनी रिपोर्ट्स फाइल करेंगे, वो भी एक हाई कोर्ट ने दिया था। अलग बात है आप उस हाई कोर्ट को ना मानते हो, आज की हाई कोर्ट ने आपके हक में फैसला दे दिया या आप उसको इंटरप्रेट कर रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूं कि इसमें भी मियां साहब के लिए रिलीफ है, और वो ये है कि अपील के लिए किसी बंदे का मौके पे मौजूद होना मेरी दानिश में जरूरी नहीं होता। अच्छा, दूसरी बात में ये होता है, अपील में नहीं होता। और जो इनके वकला कह भी रहे थे, ये तो कहना यही ये कह भी रहे अदालत थे ने दे दिया ना कि उनके कि 2 साल, होते 4 हुए साल, होना 6 साल, चाहिए। आजमाई कौन है? कोई टाइम नहीं मियां सेट किया। साहब जी। 2 साल 4 साल बाद फर्ज कर आते जब हैं, भी आए, जब भी आए, ये इसका मतलब है वो जब भी आएंगे तब तक वो केस पेंडिंग पड़ा रहेगा। तो ये भी रिलीफ भी उनका हो सकता है पीएमएलएन के लिए, ये हम यही बात करें कि एक रिलीफ भी हो सकता है। एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम जरूर इस पे बात करेंगे, और इसके साथ साथ जो दीगर मामलात है, खास करके जरदाई साहब के डेरे, उसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। देखिए खुरम साहब, बहुत सारी चीजें आगे बढ़ने के लिए होती हैं, सियासत पे हर चीज का असर होता है। जैसे कायरा साहब ने कहा कि इसका भी असर होगा, आगे आने वाली चीजों का भी असर होगा। पार्लियामान के अंदर अगर हम देखें तो कोई हमें अभी तक कोई स्ट्रेटेजी नजर नहीं आई। बजट हुआ, बजट के बाद तकरीरें भी हुई, बजट मंजूर भी हो जाएगा, मगर हमें अपोजिशन की कोई लायाअमल अपोजिशन का नजर नहीं आया उसमें। नहीं, लायाअमल तो अब नजर आएगा ना, जब अभी कट मोशंस जो कटौती की तहरीक है गालिबन कल से शुरू हो रही है, तो वहां रेजिस्टेंस होती है ना जी। अभी तो एक जनरल डिबेट है, और जनरल डिबेट में अजीब बात है कि शायद गालिबन पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा वजारत खजाना को जरूरत नहीं हुई कि वो वजीर खजाना की जो बजट तकरीर थी वो अपनी वेबसाइट पर डाल सकें, क्योंकि उसमें खराबियां थी, उसमें गलतियां थी। उन्होंने कहा जी कि वो जो टैक्स नहीं लगे वो भी उन्होंने बोल दिया उस दिन, और बाद में अगले दिन कहा कि हमें तो पता ही नहीं कि हमने कौन से टैक्स लगा दिए, और ये तो कभी सॉरी करके वो अच्छी बात यह कि टैक्स आटे पे जो लग रहा था वो शायद वापस ले लिया जाएगा, क्योंकि कल से हड़ताल चल रही थी। नहीं, देखिए ना जी, उसकी खबर है, आटे पर टैक्स है, चीनी पर टैक्स है, दूध पर टैक्स है, बनोला तेल पर टैक्स है, कॉटन के ऊपर टैक्स है। तो इन्होंने जो पाकिस्तान के अवाम के इस्तेमाल की चीजें हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे जो इनपुट्स हैं, उनके ऊपर इस वक्त सारा जोर 3 चीजों पे उन्होंने लगाया है बजट में। सेल्स टैक्स 383 अरब का है, उसके बाद जो गैस है उसके ऊपर 160 अरब के मजीद टैक्सेस हैं, ठीक है, और तीसरा इनको ये उम्मीद है कि जी हमें पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी से भी 160 अरब मिल जाएंगे। अब ये तीनों मफरूजे हैं, क्योंकि इनको अमल दरामद लाने के लिए अवाम के गले में जो पहले ही फंदा डाला हुआ है कलभूषण वाला जो बिल था वो पास हो गया, वो सेनेट के अंदर है जी। पीपल्स पार्टी कह रही है हमने वोट करना है उसके खिलाफ। जी जी, आपकी पार्टी का हम भी उसके खिलाफ वोट करेंगे, उसकी कोई जरूरत नहीं तो है। सेनेट में तो आप मुस्तरद कर सकते हैं उसको, जी कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मुस्तरद होगा। और ये तो बहुत अहम कानून साजी है। नहीं, वो तमाम जो 21 के 21 बिल हैं उनकी पूरी कोशिश हो रही है कि हम सेनेट में ऑपोजिशन मिलकर उनको सबको मुस्तरद करे। अगर हुकूमत को ये समझ नहीं आती कि इनको अपोजिशन से बात करनी पड़ेगी, ठीक है। मसलन इलेक्शन के 2 बिल हैं उसके अंदर जो शामिल हैं, उसके अंदर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का बिल है, और ये कुलभूषण वाला तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो उसको हक देता है कि वो इलेक्शन एक्ट में जो तरमीम है जो हुकूमत ने बुलडोज की है, जिसके अंदर गैर आईनी तरमीम भी कर दी है इन्होंने अपने मेजोरिटी को बुलडोज करते हुए, तो सेनेट में इस वक्त बहुत इंटेंस जारी है। कायरा साहब जैसे अभी खुरम साहब कह रहे हैं कि हम मिल के करेंगे, ये जो मुश्तरका लाएअमल है या स्ट्रेटेजी है, ये हमें सेनेट में नजर आती है, अगर आती है तो कामयाबी होती है। देखिए आसमा, अपोजिशन पहले भी मिलती रहती है, अब भी आज भी मिल रही है। ये नहीं है कि अपोजिशन का आपस में ताल्लुक नहीं है। पीडीएम से जरा दूरियां हो गई तो इसका मतलब है कि अपोजिशन नहीं मिल रही। बिलावल साहब क्या मियां साहब से नहीं मिल रहे, वो उनके पास नहीं गए। तो साहब शहबाज साहब से मिल रहे हैं, मुझे नहीं पता उनका। अच्छा। लेकिन यहाँ पे पार्लियामान के अंदर यहाँ पे तो आपस में मुलाकातें होती रहती हैं, और आज भी उनके लोग आए थे, बिलावल साहब से मिले, बिलावल साहब के हमारे साथ ही उनको मिलते रहते हैं, और हाउस के अंदर बहुत सारी चीजों पे कोऑपरेशन हो रहा होता है, और उसमें सिर्फ 2 जमातें नहीं, बाकी जमातें अपोजिशन की। और सिर्फ ये भी नहीं होता, आप अपोजिशन के अलावा हुकूमत के इत्तेहादियों से भी बात कर रहे होते हैं कि भाई इन इश्यूज के ऊपर ये कौमी इशू है, ये आपके इत्तेहाद के इश्यूज नहीं है। तो ये कोऑपरेशन तो ऑलरेडी मौजूद है, और जो कौम की उम्मीदों का या कौम के जज्बात का तर्जुमान एक इशू आ जाता है ऐसा का पार्लियामान में, उस पर यकीनन अपोजिशन जो है, हुकूमत की अपनी को मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन अपोजिशन कलभूषण वाले बिल के ऊपर या बाकी की बात कर। अच्छा, लेकिन आप तो वजीर मुमलिकत बराए पार्लिमानी उमूर हैं खान साहब, तो ये जो कलभूषण वाला बिल है, ये तो उनको जाहिर है कि एक इंटरनेशनल कोर्ट के फैसले के बाद उनको ये इजाजत होगी कि वो दी जाएगी, लेकिन आप लोगों का जाती ओपिनियन इस पे क्या है? उसको मिलनी चाहिए इजाजत कि वो उसको इंसाफ के लिए कोर्ट के पास ले जाना चाहिए?
देखिए, ये जो 2017 में कुलभूषण यादव का जब ये फैसला आया मिलिट्री कोर्ट का, और अभी मेरे मोहतरम दोस्त खुर्रम दस्तगीर साहब, इनको वैसे काफी दिनों से कुलभूषण की बड़ी फिक्र है, लेकिन बड़े अफसोस के साथ मैं कह रहा हूँ, देखिए बात बातें तल्ख हो जाती हैं, चीखो पुकार शुरू हो जाती हैं। क्यों फिक्र है? देखिए 3 साल तो आपको भी हो गए ना, आपने फांसी नहीं दी। ऑफ शूट है ये अली मोहम्मद शरारतें करते हैं, भाईजान, छोटी शोगल की शरारतें करते हैं। हुजूर वाला सुना भी मैंने बात की ही नहीं है, और वहां से जनाब चीखो पुकार शुरू हो गई है। ये वो कुलभूषण यादव है कि हमारे साबिक वजीर आजम, जिनको आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने डिक्लेयर किया है कि इन्होंने कोई हमें सबूत नहीं दिया, बगैर किसी वजह के ये नहीं आए, तो इसलिए हम मजबूर हैं कि इनको मफरूर डिक्लेयर करें। तो मियां साहब ने जब तक वजीर आजम रहे, जब तक पाकिस्तान में रहे, बल्कि शायद आज तक कुलभूषण यादव का नाम तक नहीं लिया। ये वो कुलभूषण यादव है जिसके खिलाफ आजकल नून लीग को बड़े जो है वो इस्लाम पसंदी के और पाकिस्तानियत के दौरे पड़ रहे हैं। देखें, मुनाफिकत ना किया करें। ये 2017 में इसके खिलाफ फैसला आया और फांसी की सजा तजवीज हुई 2017 में। हमारी हुकूमत नहीं थी, इनकी हुकूमत, इनसे पूछें फौरी तौर पे फांसी क्यों नहीं चढ़ाई। लेकिन जो सिग्नेटरी थे उनका भी कसूर नहीं है। आप आईसीजे की सिग्नेटरी बहुत 1970s से हैं, और रियासत पाकिस्तान जब कहीं दस्तखत करती है तो मियां साहब का दस्तखत तो होता नहीं है कि दस्तखत करके निकल जाओ फिर वापस ही ना हो। तो आपने अगर आईसीजे का उनकी जुरिस्डिक्शन कबूल की है तो फिर आपने उनका फैसला मजबूरन कबूल करना है। आईसीजे का फैसला यह है कि आपने उनको रिव्यू का राइट दें, लेकिन उसमें इख्तियार हमें दिया है कि अपने कानून के मुताबिक वो राइट दें। तो वो कौमी असेंबली से पास हुआ है। हाँ, इस बात से मैं आपको ये इख्तियार दिया है, यानी रियासत पाकिस्तान को इख्तियार दिया है। हाँ, रियासत पाकिस्तान को दिया है। सेनेट ऑफ पाकिस्तान में इस पे सेनेट ऑफ पाकिस्तान में आज ये पेश हुआ है जी, और फरूक नसीम साहब जो है उनकी मिनिस्ट्री का बिल था, आज मैंने उनकी जगह उधर पेश किया और वो अब स्टैंडिंग कमेटी में गया है। वहां मुस्लिम लीग नून के भी हमारे दोस्त मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी के भी, और हम भी, और बाकी एलाइज और अपोजिशन बेंचेस भी। वहां इसको डिस्कस किया जाएगा। इनसे जो हमारा एग्रीमेंट हुआ था खुर्रम भाई की जमात से, ये जब लड़ाई मड़ाई का सिलसिला चला बजट के स्टार्ट में, लड़ाई नहीं, आप हमारे पर हमलावर हुए हैं सर, यू असॉल्टेड अस। हाँ, ये मत कहें खुदा की लड़ाई हुई है, ये इसराइल फलस्तीन ना बनाए उसको, आप इसराइल हैं, फलस्तीन है। हुजूर वाला बात तो पूरी करने दिया करो यार, आप बीच में छलांग लगा देते हैं तो सारा फिर वासना बीबी नाराज होती है, ब्रेक हो जाएगी सर। देखें उसमें ये एग्रीमेंट हुआ था जी जी, ये तो अमन पसंद है ना, ये अमन पसंद है। अच्छा, मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक के बाद इस पे बात कर लेते हैं। जंग भी खान साहब ब्रेक के बाद ले लेते जंग ना हो। हैं कि हमारे पास क्या इख्तियार था रियासत पाकिस्तान के खिलाफ के पास, कि क्या हम आईसीजे के पास जा सकते थे कि नहीं, और फिर थोड़ा सा पंजाब की पॉलिटिक्स पे बात करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे कि कुलभूषण वाले बिल के ऊपर, चूंकि वक्त खुद थोड़ा होगा, सब अपनी अपनी बात कर ले। इसके साथ ही हम पॉलिटिक्स को भी, ये सब सियासत के लिए हो रहा है, अगले इलेक्शंस की तैयारी हो रही है, या ये वाकई आपको पॉइंट ऑफ व्यू समझना पड़ेगा गवर्नमेंट का, मजबूरियों को समझना पड़ेगा। गवर्नमेंट को ये अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहिए था ना, पार्लियामान में आके शफाफियत हल होता है अगर कोई ऐसे मुश्किल मामला आते हैं। इन्होंने 20 मई 2020 को खुफिया ऑर्डिनेंस किया, सदारती ऑर्डिनेंस, जिसकी बुनियाद पर अब ये कानून बना है। 40 दिन वो पाकिस्तान के अवाम और पार्लियामान की नजर से खुफिया रखा इन्होंने, क्योंकि इनको पता था कि इन्होंने गलत काम किया है। और फिर पिछले साल बजट सेशन के दौरान ही ये बात खुली कि इन्होंने तो ऑर्डिनेंस, अगर आप गवर्नमेंट में होते तो आप भी यही करते, क्योंकि आईसीजे का फैसला है, ये कोई उनका अपना फैसला तो नहीं है। एक ज़ईफ कानून साजी है, कमजोरी में आकर की गई है, क्योंकि इस गवर्नमेंट के ऊपर फाटफ के प्रेशर्स हैं, इस गवर्नमेंट के ऊपर आईएमएफ के प्रेशर्स हैं, जो ये प्रेशर लेने के लिए तैयार हैं। क्या करें वो? तो इनको चाहिए था कि हम अब बात करते कि भाई ये एक सोल्यूशन है, ये जो इन्होंने ऑर्डिनेंस के जरिए अब कानून हमारे ऊपर इम्पोज किया है और फिर बुलडोज किया। देखिए, अगर यहां भी आईसीजे हमारे पीछे नहीं पड़ा हुआ कि ये 10 जून को ही पास होना है, ये अगर इसके ऊपर ये पूरी डिबेट करा दे, अभी भी सेनेट में इनके पास मौका है, डिबेट करा ले, कह रहे हम करवाएंगे, ताकि डिबेट करवाएं, ताकि ये बात खुल है कि ये कानून जो है ये सिर्फ आईसीजी के, जिस तरह हम फाटफ के मामले में भी हमने वो कानून साजी कर दिया है, तो दुनिया के किसी मुल्क में ये हुकूमत कमजोर है, ये पाकिस्तान को कमजोर करने वाले लोग। अच्छा, अब ये सब कुछ इलेक्शन के तनाजुर में ही हो रहा है ना, ये क्योंकि कुलभूषण का
सरकार है उसके ऊपर नहीं, मैं वैसे कह रही हूँ कि नैरेटिव था ना, जो नैरेटिव था उसके ऊपर ये नैरेटिव बिल्डअप होगा। हमारे मुल्कों में, ये तरक्की पजीर मुल्कों में जहाँ पॉलिटिक्स पूरी तरह मैच्योर नहीं हुई, रवामी राय आमा जो है वो आसानी से इधर से उधर स्विंग कराई जा सकती है, उसमें आप भी रोल प्ले कर लेते हो, हम सियासी जमातें भी कर लेते हैं, दुरुस्त बात है। सो बहुत सारे और लोग भी हैं जो हमारे खिलाफ भी कर लेते हैं। सो ये बहरहाल इसमें पॉलिटिक्स है, और पॉलिटिक्स करना जुर्म नहीं है। मैं सियासी जमात हूं, मैं सियासत करूंगा, मैं कोई और जाके जर्नल तो नहीं बनूंगा ना, मैं जज तो नहीं बनूंगा ना, मैं कुछ फैसले तो नहीं करूंगा, मैंने तो सियासत करनी है। मैं सियासत पॉजिटिव कर रहा हूं या नेगेटिव कर रहा हूं, ये फैसला है। पॉलिटिक्स जरूर होनी चाहिए, कलभूषण का इशू हो या दुनिया का कोई और इशू हो, हर चीज के ऊपर पॉलिटिक्स होनी चाहिए, लेकिन पॉजिटिव। और यहाँ पे पॉजिटिव के लिए तो पार्लियामान को इकट्ठा करना चाहिए, इस तरह की कानून साजी में सारी जमातों को इकट्ठा होना चाहिए। है कब नहीं किया, हमारी तारीख शायद है, हमने आइन से लेके आम कानून साजी तक आप उसको कवर करते रहे हैं। हमारे दौर में कंसेंसस सही बात है, बनते रहे जी। अपनी खान साहब आप जवाब दे जी। ये सारी अली मोहम्मद भी बात करेंगे, इनके बाकी लोग भी बात करेंगे, ये करना चाहिए, ये होना चाहिए, आपस में कोऑपरेशन होना चाहिए। हम कहते हैं आए बैठे, ये बात सिर्फ ये अपने वजीर आजम साहब को समझा ले। बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, उनको कौन समझाएगा? जी खान साहब देखें, अभी बजट सेशन तकरीबन तकारीर की हद तक अभी रैपअप हो गया होगा। मैं आखिरी सेगमेंट में निकला हूं, अभी जाऊंगा शायद खत्म हो गया हो। तो वो इनिशियल जो लड़ाई बड़ाई हुई, उसके बाद हम सियासतदान ही बैठे, और मैं समझता हूँ सख्त तकारीर भी हुई। आज सेनेट में बड़ी सख्त तकारीर हुई हैं, लेकिन सबने एक दूसरे को सुना है, और एट द एंड ऑफ द डे बैठ के हमने उसका हल भी निकाला है। तो जब हम स्पीकर साहब के चैम्बर में इकट्ठे हुए बैठे, और ये वज़ीर आज़म साहब के बाकायदा उनकी भी ओनरशिप थी उसमें, और शहबाज साहब की भी थी, बिलावल साहब की भी। जब वहां हम बैठे, वहां राना तनवीर साहब थे, और मुस्लिम लीग नून से, और राजा परवेज अशरफ साहब, उनकी सीनियर लीडरशिप थी, राना सनाउल्लाह साहब थे, हमारी जमात से शाजी थे, उसमें असद भाई थे। तो ये सारी डिस्कशन उधर हुई कि पार्लियामेंट्री कमेटी ऑनरेबल स्पीकर साहब बनाएंगे, वहां उन कवानीन का जायजा लिया जाएगा। हमने ये नहीं कमिट किया कि हम सारा वापस लेंगे, जायजे किए तक हमारी कमिटमेंट ये भी एक बहुत अच्छा लीगैलिटी है। इनका सबसे बड़ा गिला ये था कि आपने प्रॉपर डिबेट नहीं कराई, बड़ी तेजी से पास कराया। वहां उसको डिस्कस कर लिया जाएगा, और सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में भी जा चुका है, तो जो उसमें कोई सुकम है वो दूर कर लिया जाएगा। ये बहुत अच्छी डेवलपमेंट है, इसको अप्रिशिएट किया जाना चाहिए कि चले देर आए दुरुस्त आए के सब मिल के रिव्यू कर ले। ये तवक्को है, मेरी गर्दन पे जो किताब ये करनी चाहिए अली मोहम्मद खान के कॉलीग्स ने मारी है, उसकी दर्द मुझे आज तक हो रही है। इनकी तो आंखें चाके सब ठीक हो। बहुत अफसोसनाक बात है सर, मैं जिसने मारी है, मैं उसके बिहाफ से मैं आपसे माफी मांगता हूं। आप हमारे बड़े भाई हैं, बल्कि मैं मरहम पट्टी भी करा देता अगर आप मुझे वक्त पे बता देते। नहीं, एक कॉलर खरीद के भिजवा दें, कभी कभी जरूरत पड़ जाती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इस पाकिस्तान और हमारे मुल्क के तमाम मसाइल का हल पाकिस्तान की पार्लियामान ने करना है, सियासतदानों ने करना है। ये देर से या जल्दी अगर ये समझ में आ जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान के मसाइल जो हैं वो जल्दी हल किए जा सकते हैं। गुफ्तगू आपने सुनी, फैसला आपका।